Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to do differentiate between the following. Okay, of chapter number 2, computer and its function. So let's get started. First, hardware and software. So you have to differentiate between hardware and software. The physical components of computer that we can see, touch and feel is called hardware. Software is a set of instruction that tells the computer what to do. We cannot touch software. Okay? So any physical component of a computer. Physical components means anything that we can see, we can touch, we can feel. For example, is called a hardware. For example, this, monitor, keyboard, mouse, all those things are physical components because we can see them, we can touch them, we can feel them. So they are hardwares. Okay, but what is a software? Software is a set of instructions, and these instruction tells the computer what to do, how to do the work, how to manage. ठीक है? So software, we cannot touch a software. Hardware we can touch, software we cannot touch. Okay, तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वो होता है जो कि फिजिकल कंपोनेंट होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं. सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर का मतलब तो होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है. ठीक है, सॉफ्टवेयर को हम क्या टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते. ठीक है, बट हार्डवेयर को हम छू सकते हैं क्योंकि ये फिजिकल होता है. हार्डवेयर का एग्जांपल अगर मैं बात करके बताऊं तो हार्डवेयर जैसे कि आपका माउस है, उसको हम छू सकते हैं. मॉनिटर है, कीबोर्ड है. ठीक है, सॉफ्टवेयर जो भी प्रोग्रामिंग हम करते हैं वो, उसको हम छू नहीं सकते. ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर हो गया. सेकेंड, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस. Input devices help to enter information in the computer. So any device that help to enter information or data into the computer are input devices. Output devices. Output devices display the result of our work on the computer. But output devices are those which display the result of our work on the computer. For example, input device, for example, with the help of a keyboard we can enter the data. So keyboard is an input device. Output device, monitor, because with the help of a monitor it will show the result on the screen. So monitor is an example of output device. Okay, printer and scanner. तो पहले तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिसकी मदद से हम कोई भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमें डालना है, ठीक है, कोई भी डेटा है, वो अगर हमें एंटर करवाना है, डालना है कंप्यूटर में, तो हम उसको इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं. आउटपुट डिवाइस क्या करता है? आउटपुट डिवाइस जो है वो रिज़ल्ट शो करता है हमारे काम का कंप्यूटर पे. जैसे इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड है, उसकी हेल्प से हम एंट्री कर सकते हैं कोई भी डेटा, इंफॉर्मेशन. आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, जैसे हमने कोई भी किया कैलकुलेशन, मान लो 4 × 4 किया तो आंसर 16 है, तो वो आंसर दिखाएगा कहाँ पे देगा? मॉनिटर पे देगा ना. तो मॉनिटर हमारा कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है. ओके, थर्ड वन इज प्रिंटर एंड स्कैनर. अ प्रिंटर गिव्स printout of our work on paper. A scanner converts paper images into digital or electronic images and then flashes them on the monitor. So what is a printer?
Printer is a device that is used to give printout. We can take printout of our work on a paper with the help of a printer. And what is a scanner? Scanner is used to scan any image. Okay, so we can scan any scanner, we can scan, a scanner can scan any image and it can convert them into electronic or digital image, and that digital image you can see on the monitor. Okay, सो प्रिंटर जो है वो यूज़ होता है प्रिंट आउट निकालने के लिए। जैसे आपने कोई भी काम किया कंप्यूटर पे, आपको वो चीज़ पेपर पे चाहिए, तो उसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो अपने काम का उस पेपर पे विद द हेल्प ऑफ अ प्रिंटर, प्रिंटर की हेल्प से। स्कैनर क्या करता है? स्कैनर काम आता है स्कैन करने के लिए किसी भी इमेज को, ठीक है। तो वो आप कोई भी इमेज को जो है, जो पेपर में है, उस इमेज को आप कंप्यूटर के अंदर लेके आना चाहते हो, तो उसको स्कैन करके उसको डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक इमेज में कन्वर्ट करने का काम जो क्या कौन करेगा? स्कैनर करेगा, ठीक है। तो जो भी आपने पेपर डाला उसको स्कैन करेगा इमेज को स्कैनर, और वो आपको मॉनिटर में क्या करेगा? फ्लैश का मतलब शो करेगा, ठीक है। फोर्थ है टच पैड एंड टच स्क्रीन। Touchpad is used instead of a mouse on the laptop computer to control the movement of the pointer on screen. So what is a touchpad? Touchpad in laptops, okay, there is no mouse, but there is a touchpad instead of mouse. And what we can do with the help of a touchpad? We can control the movement of the pointer means cursor on the screen with the help of a touchpad. Okay, so touchpad is a touch sensitive pad, and if we move our fingers on that pad, then we can control the movement of the pointer on the screen. And what is a touch screen? A touch screen is a screen through which data can be entered by just touching it with a finger. So if I want to enter any data, okay, so what I can do, I simply have to touch the screen with my finger so that I can enter the data. So touch screen in this way I can use, ठीक है। टच पैड क्या होता है बेटा? टच पैड जो लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उसमें माउस की जगह पर टच पैड्स होते हैं, माउस नहीं होते। तो ये टच पैड पे क्या कर सकते हो आप? टच पैड की हेल्प से आप जो भी आपका स्क्रीन है ना लैपटॉप की, उसमें एक पॉइंटर होता है, पॉइंटर का मतलब वो एरो जैसा जो हिलता है जिसको हम कर्सर भी कहते हैं, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टच पैड, क्योंकि टच पैड एक टच सेंसिटिव पैड होता है, और अगर आप उस पर अपनी उंगली इस वे में मूव करोगे ना, तो वो आपका जो है पॉइंटर भी स्क्रीन पे मूव होने लगेगा, तो कंट्रोल के लिए काम आता है ये। सेकंड, टच स्क्रीन तो सबको पता है। आपके पास जो ये वाला फ़ोन है ना जो अभी आप यूज़ कर रहे हो, अगर ये एंड्रॉयड है, एप्पल है, टच स्क्रीन वाला फ़ोन है, तो इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो आप? कुछ भी आपको डेटा डालना है, ठीक है, तो वो आराम से आप डाल सकते हो, बस आपको स्क्रीन पे अपनी उंगली से टच करना है, ठीक है। जैसे मान लो आपको अपने फ़ोन में किसी का सेव करना है नंबर, आपको अपने टीचर्स का नंबर सेव करना है, ठीक है, या मैसेज करना है, तो आप फिंगर से तो लिखते हो ना, तो आप डेटा डाल कैसे रहे हो? विद द हेल्प ऑफ फिंगर, और वो टच स्क्रीन फ़ोन है इसलिए जस्ट टच से, तो टच करने से आपका जो है स्क्रीन पे आप कोई भी डेटा एंटर कर सकते हो। लास्ट वन इज हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। The document printed on a paper is called a hard copy. So whenever you take a printout of any document on a paper, okay, then we call it a hard copy or hard copy, okay. The document that is in the computer as a file is called soft copy. But if the document or a file if a document that is in the computer in the form of a file, then we call it a soft copy, okay. मान लो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स, जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट है, मान लो आपका जो है आधार कार्ड है आपका, ठीक है, आपने स्कैन करके आपका कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, ठीक है,
पर आपको उसका प्रिंट आउट कर चाहिए, तो आपने उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाया पेपर पे, तो वो जो प्रिंट आउट होगा ना वो आपके हाथ में है जो पेपर पे, वो उसको हार्ड कॉपी कहेंगे, हार्ड कॉपी, ठीक है। बट जो आपने स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डाला हुआ है और कंप्यूटर में देख सकते हो आप, तो उस जो फाइल को, जो उस डॉक्यूमेंट की उस फाइल को हम क्या कहेंगे, सॉफ्ट कॉपी कहेंगे, ठीक है। तो ये है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। सो with this I am finishing today's class. You have to write this in your book in a very neat and clean handwriting, and in our next class we will do answer the following questions. Okay, thank you so much, have a nice day, bye.